آپ تو اندر سے ہو کے آ رہے ہیں، آپ تو اندر سے ساری خبر لے کر آ رہے ہو، آپ ہی سنا دو ان کو۔ اچھا ہم نے جو سنانی تھی سنا دی، باقی کسر آپ رہ دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سب سے پہلے جو عمران خان نے پیغام بھیجا ہے، انہوں نے پیغام بھی دیا اور انہوں نے تاکید بھی کی ہے کہ القادر کیس کے اوپر یہ ضرور بات کرنی ہے کہ القادر کی جو سزا ہے وہ 23 دسمبر کو سنائی جانی تھی، جو کنوکشن ہے، جو سزا دینی تھی۔ اس کے بعد وہ 6 تاریخ کو دوبارہ نئی ڈیٹ آئی، وہ تھی 6 جنوری کو۔ لیکن 6 جنوری کی تاریخ سے پہلے ٹی وی کے اوپر لوگوں کو پتا تھا کہ عمران خان کو سزا سنائی جا رہی ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان کہ یہ کس قسم کا انصاف ہے کہ سزا ابھی قیدی کو نہیں پتا کہ سزا آنے والی ہے یا اس کو سنائی گئی ہے، لیکن پیپر آؤٹ ہو گیا ہے، اور جو ٹیلی ویژن چینلز پہ کئی جرنلسٹ اور اس کے بارے میں بتا چکے ہیں کہ عمران خان کو سزا سنائی جائے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فیصلہ پہلے سے طے شدہ ہے، اور یہ جو تاخیر کی جا رہی تھی فیصلہ سنانے میں، ان کا یہی خیال تھا کہ یہ شاید عمران خان کے سر پہ تلوار لٹکائی جائے اور عمران خان کسی ڈیل کے لیے بیٹھ جائیں۔ تو کیونکہ عمران خان بارہا کہہ چکے ہیں اور یہ کوئی ان کو ماننے کو تیار نہیں ہے، نہ ہی آپ لوگ جو جرنلسٹ ہمارے سے پوچھتے ہیں آپ یہ ماننے کو تیار ہیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ میں اپنے کیسز کا سامنا کروں گا۔ اگر انہوں نے پہلے سے طے شدہ بھی ہے کہ ہم نے فیصلہ کر کے رکھا ہوا ہے سنبھال کے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آ کے سنائیں، اور یہ اب عمران خان کا پریشر ہے کہ کل آپ جج کو کہا ہے، جج کو میں اپیل ہی کر سکتے ہیں کہ ہر حالت میں جج آئے اور مجھے فیصلہ سنائے۔ القادر کے جو جیسے یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا بھی فیصلہ پہلے سے آپ کو اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ القادر کا پہلے سے فیصلہ ہوا ہے۔ اسی طرح 2 اور کیس گزرے ہیں اس سے پہلے، ایک توشہ خانہ کا کیس دلاور جج کا، ایک سائفر کا کیس جج ذوالقرنین کا، ایک تیسرا کیس جج ارجمن کا۔ یہ ماشاءاللہ پاکستان ایک واحد ملک ہوگا جہاں پہ غلط سزائیں سنانے پہ ججز یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ ان کو پاکستان میں ترقی ملے گی اگلے کورٹس کے اوپر۔ ان 3 سزاؤں کے بعد پاکستان میں اگلے ہائر کورٹس کے اندر ان کو انشاءاللہ ترقی دی جائے گی۔ ہم جو عوام ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، ان ججز کی جو ان مشکل حالات میں بھی اور بڑے پریشر کے نیچے، جنہوں نے پچھلے دنوں میں، پچھلے 1.5 سال میں کئی ججز نے انصاف کیا ہے لوگوں کے ساتھ، انہوں نے صحیح فیصلے سنائے ہیں جس کو ہم پہچان سکتے ہیں کہ انصاف ملے۔ تو ہمیں جن کو ججز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انہوں نے اپنی ڈیوٹی ادا کی ہے، یہ ان کا فرض تھا کہ جب لوگ ان کے سامنے آئیں تو ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ پاکستان میں اتنے برے حالات نہیں ہیں، ججز ہیں، اور انشاءاللہ اگر ان کے سے پریشر ہٹا دیا جائے تو بہت سے ججز اپنا کام بہترین طریقے سے سر انجام دے دیں گے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اس وقت جن ملکوں کے اندر، اگر باہر کے ملکوں میں آپ ہوتے اور ججز غلط فیصلہ چنائیں، ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ غلطی سے آپ ایک ججمنٹ دے دیں، ایک ہوتا جان بوجھ کے آپ ایک کیس میں غلط سزائیں سنائیں۔ کسی اور ملک میں آپ ہوتے اس وقت، یہ جج صاحبان، ان کے اوپر انکوائری ہوتی، ان کے اوپر کمیشن بیٹھتی، ان کو سسپینڈ کیا جاتا، ان کو نوکری سے نکالا جاتا۔ تو یہاں پہ پاکستان میں آپ نے دیکھ لیا کہ اس وقت الٹا نظام چل رہا ہے۔
दूसरा अलकादिर, फिर से दोबारा मैं अलकादिर यूनिवर्सिटी के ऊपर बात करना चाहती हूँ। आज हम इमरान खान से जब बात कर रहे थे तो ये आपको पता होना चाहिए कि इमरान खान कहते हैं कि हमारे शौकत खानम और नम्मल के अंदर ऐसे डोनर्स हैं जो 100 करोड़ देने को तैयार हैं। एक एकेडमिक ब्लॉक का नम्मल का हम आपको बता देते हैं, आपको एक एग्जांपल दे देते हैं नम्मल यूनिवर्सिटी का, कि यहाँ पे हमारे एकेडमिक ब्लॉक अभी डिज़ाइन भी नहीं हुआ, तो लोग अपना सदका जारिया देने के लिए पाकिस्तान में लोग बहुत इस तरह ये चैरिटी देते हैं, बहुत ही ज़कात और सदका जारिया देते हैं। और लोग हमारे से पूछते हैं कि आपका एकेडमिक ब्लॉक कब बन रहा है, कब उसका डिज़ाइन हो रहा है, ताकि हम इसको स्पॉन्सर कर सकें। और हमारा एक एकेडमिक ब्लॉक जो बनना है वो 150 करोड़ का है। तो आप ये बताएं कि आपने 50-60 करोड़ की जो अलकादिर की यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग बनी है, क्या इमरान खान को ये फेवर करने के लिए, जो वो कह रहे हैं कि मलिक रियाज को फेवर किया है, तो क्या उनको एक 50-60 करोड़ की यूनिवर्सिटी के लिए उनको फेवर करना था? ये तो ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग खुद आते हैं और कहते हैं कि हमें आप मौका दें कि हम इनको स्पॉन्सर कर सकें। तो इसके साथ आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी कि 9 अरब रुपया शौकत खाना में लोग देते हैं। तो क्या अलकादिर यूनिवर्सिटी के लिए आपका ख्याल है पाकिस्तान में लोग नहीं है, पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ हैं वो नहीं है जो इसको स्पॉन्सर कर देते? कि इमरान खान को इतना मुश्किल फ़ैसला करना था अलकादिर यूनिवर्सिटी के लिए? तो ये तो दूसरी बात आपको अलकादिर पे समझ आ गई। तीसरी इमरान खान ने बात की है न्यूट्रल अंपायर्स की। उन्होंने कहा कि मैं पहला इंसान हूँ और वाहिद इंसान हूँ जिसने क्रिकेटर जिन्होंने न्यूट्रल अंपायर के लिए बहुत जद्दोजहद की, और आखिरकार इमरान खान की इस जद्दोजहद से सारी दुनिया में क्रिकेट के मैदान में न्यूट्रल अंपायर तैनात हुए हैं। और अब आपको पता है कि आपको शायद अभी पता ना हो, लेकिन इमरान खान ने इसके लिए बहुत जद्दोजहद की थी। तो ये इमरान खान की क्रिकेट की मैदान में बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसी तरह इमरान खान कह रहे हैं जो 9 मई और 26 नवंबर, इसके लिए क्या उन्होंने मांगा है? उन्होंने कहा है कि इसके लिए भी न्यूट्रल अंपायर लगाएं। न्यूट्रल अंपायर हमारे सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस को लगाएं जो इसकी तहकीकात करें, जो शफाफ तहकीकात करें और वो बताएं कि जिसने भी जुर्म किया है, जिसने भी बिल्डिंग में घुस के आग लगाई है, यही जजेस जिसको भी सज़ा देंगे, अगर वो पीटीआई में होगा या नहीं होगा, जजेस की जिम्मेदारी है कि ये उनको उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको आइडेंटिफाई करें और जजेस जो सज़ा देंगे। इमरान खान कहते हैं मैं क्यों उसके रास्ते में खड़ा हूँगा, लेकिन एक तहकीकात तो होनी चाहिए। नाइंसाफ़ी तब होती है जब बेगुनाह लोग जेलों के अंदर हों और आप कहें कि इनको, ये हमें पता है कि इन्होंने जलाई हैं बिल्डिंग्स, लेकिन आपने कोई सबूत सामने ना रखा हो। आप हमारे सब के ऊपर भी केसेस हैं, मेरी बहन के ऊपर भी हैं, मेरे ऊपर भी हैं, शायद यहाँ काफ़ी लोग खड़े होंगे उनके ऊपर भी हैं। क्या केस है कि आपने 9 मई में बिल्डिंगें जलाई हैं या आपने अस्करी बैंक जलाया है? तो आप बताएं कि हम कई दफ़ा, हम 1.5 साल से कोर्ट्स में फिर रहे हैं, एक दफ़ा किसी आईओ ने नहीं आके बताया कि बताओ कि आपके पास सबूत क्या है। तो ये केसेस उस किस्म के हैं ये जो नहीं चल सकते, इनको पता है कि नहीं चल सकते, इससे केसेस नहीं चला रहे। मैंने खुद, मेरी बहन ने खड़े होके जज के सामने कई दफ़ा कहा है लाहौर में कि जज साहब आप केस चलाएं, वो केस नहीं चलाते हैं। लेकिन लोगों को बहुत ज़्यादा, कई हज़ार लोगों को आप जेलों में नहीं डालना चाहिए। तो फिर से इमरान खान ने आज कहा है कि मैंने एक कमेटी बनाई है जो मुज़ाकराती कमेटी है, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। उनको 2 इनके डिमांड्स हैं, एक न्यूट्रल अंपायर के
जो जजेस सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कमीशन बने और दूसरा बेगुनाह कैदियों को रिहा करने के लिए। यही उनके दो मुतालबात हैं। मुज़ाकराती कमेटी को कि उन्होंने कहा है कि मैंने पूरी अथॉरिटी दे दी है, वो ये इसके ऊपर करेंगे काम। और ये अब वो कहते हैं कि इसके अलावा जो ये कह रहे हैं कि डील हो रही है, वो दोबारा उन्होंने कह के भेजा है कि कोई डील मैं नहीं कर रहा हूँ। बस ये उनका आज पैगाम था, वो हमने आप तक पहुँचा दिया। मैडम ये बताइएगा कि खान साहब ने आज इस बात की तस्दीक की है कि बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई है आर्मी चीफ से और उसकी तफसीलात भी उन्होंने मुझे बताई है। तो बैरिस्टर गौहर खान ने भी इवन तस्दीक की है, उनके साथ ही थे। लेकिन बैरिस्टर गौहर अब कह रहे हैं कि इमरान खान ने कहा है कि मेरी मुलाकात हुई है आर्मी चीफ से, मेरी कोई मुलाकात नहीं। देखिए, हम वहाँ खड़े थे जब इमरान खान आपसे बात कर रहे थे। देखिए, इमरान खान ने ये भी कहा है कि हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए। जब आपसे बात की थी, ये हमारे से बात नहीं की, ये आपसे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए। देखिए, इमरान खान ने तो अपने अभी भी दो मुतालबात रख दिए हैं, लेकिन जो दूसरी तरफ से कोई भी मुतालबा हो, आज तक मैंने आपको कई दफ़ा कहा है कि हमने नहीं सुना डायरेक्टली। इमरान खान, देखिए, मुतालबा वो होता है कि आप टेबल पे बैठ के बात करें। हमने भी सुनी सुनाई, हमेशा मैंने आपको आके बताया है कि हमने सुनी सुनाई बातें की हैं। सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन आती है कि जी 3 साल ना बात करें। ये पहली दफ़ा बराह रास्त हुआ है और उन्होंने इसको खुशाइन कहा। हाँ, उन्होंने खुशाइन कहा। देखिए, हमें इनडायरेक्टली इस किस्म की बातें सुनने में आती थी, लेकिन जब डायरेक्ट राब्ता ना हो तो बात कुछ भी बन सकती है, उसके अंदर वो सदाकत नहीं होगी। लेकिन आज जो डायरेक्ट बात हुई है, इमरान खान ने कहा है कि अगर उन्होंने इनको इनवाइट किया है आर्मी चीफ ने, और मेरे ख्याल में अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर की जो मुलाकात हुई है, तो ये अच्छी बात है। उन्होंने पहल कदमी की है इस चीज़ में, तो इमरान खान ने इसको खुशाइन कहा है।